رادھے رادھے آپ سبھی کو. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں گھر ہوں اپنے، تو میں اس روم میں بیٹھی تھی اور یہ روم نا میرے پاپا کا ہے. مطلب اب تو ہم نے اس میں پراپر صوفے ڈال دیے. پہلے اس میں صوفہ نہیں تھا، ان کا بیڈ تھا، یہاں پہ چیئر تھی، یہاں پہ المیرا تھی. تو جو بھی ان کے کلائنٹس وغیرہ بھی آتے تھے وہ یہیں اس روم میں ہی بیٹھتے تھے. تو ان کے جانے کے بعد پھر تھوڑے ٹائم بعد یہ ہم نے بدل دیا تھا، تو جو ان کا بیڈ تھا وہ اوپر شفٹ ہو گیا. تو مطلب میں ان سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہوں. نہیں میں ابھی بھی بہت زیادہ اٹیچڈ ہوں ان سے. مطلب میں جب بھی اس روم میں بیٹھتی ہوں نا تو ایک الگ ہی زون میں چلی جاتی ہوں، ایک الگ ہی دنیا. پاپا والی دنیا. میں نا اس دنیا میں سب کچھ پرفیکٹ، سکون، شانتی. مطلب آپ لوگ میرے سے پوچھتے ہو کہ اپنے پاپا کے بارے میں بتاؤ، میں جان بوجھ کے نہیں بتاتی ہوں کیونکہ میں بتا ہی نہیں سکتی. میں بہت ایموشنل ہوں، بہت ایموشنل ہوں. مطلب میرے سے کنٹرول نہیں ہو پاتی. پھر نا وہ ایک فیلنگ جو ہوتی ہے وہ میرے سے کنٹرول نہیں ہو پاتی. میں بہت بستی ہوں. میرے کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کہیں گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے. مطلب ان کے جانے کے بعد ہم نے جو دنیا دیکھی ہے نا وہ اتنی بری ہے، اتنی بری ہے. میں اب ڈیلی میرے دماغ میں بس ایک چیز آتی ہے ابھی بھی کہ اگر میرے پاپا ہوتے تو شاید مجھے کبھی اتنا سہن ہی نہ کرنا پڑتا جتنا میں سہن کر رہی ہوں، جتنا میں سہن کر کے بیٹھی. وہ ہر کسی کو صحیح کر دیتے، سب کا دماغ ٹھیک کر دیتے. سب ہے میرے پاس، ایسا نہیں ہے. ممی ہے، بھائی ہے. بھائی تو مطلب میرا بالکل ہی ایسا ہے جیسے پاپا، پر ایک ہوتا ہے نا پاپا، وہ تو پاپا ہی ہوتا ہے. مطلب ان میں جتنی پاور تھی نا، جتنے گٹس تھے، جتنی ہمت تھی، وہ اکیلے ہی کافی تھے پوری دنیا کا سامنا کرنے کے لیے نا. اب جتنا لوگ بدنام کر دیتے ہیں، جتنا لوگ بول دیتے ہیں کچھ بھی، وہ اس لیے بول دیتے ہیں کہ پاپا نہیں ہے. اگر شاید پاپا ہوتے تو شاید کوئی بھی نہیں بول پاتا. ہمت ہی نہیں ہوتی شاید کسی کی بولنے کی نا. سب کمزور سمجھتے ہیں. حالانکہ میں بہت اسٹرانگ ہوں، بہت اسٹرانگ ہوں. مجھے سب یہی بولتا ہے کہ میں اپنے پاپا پہ گئی ہوں، میں بہت اسٹرانگ ہوں. پر وہ ہے نا کہ ایک اسٹرانگ آدمی، ایک اسٹرانگ انسان کمزور ہوتا ہی ہوتا ہے حالاتوں کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے. کتنی بار میں سوچتی ہوں کہ میں اکیلی رہوں، میں غائب ہو جاؤں، میں بالکل نا سوشل میڈیا سے بالکل غائب ہو جاؤں. کوئی میرے بارے میں کوئی بات نہ کر پائے، کسی کو موقع نہ ملے میری بے عزتی کرنے کو، مجھے بدنام کرنے کے لیے. یہ جو ٹونٹ مارے جا رہے ہیں، یہ جو باتیں ماری جا رہی ہیں، یہ مطلب بہت دکھ دیتی ہے، بہت دکھ دیتی ہے. اندر اتنی فرسٹریشن آ جاتی ہے، اتنی وہ آ جاتی ہے کہ کس کس کو انسان کیا کیا جواب دے. کچھ فالتو لوگ کچھ بھی کر دیتے ہیں. بٹ اگر میرے پاپا ہوتے
तो शायद किसी की हिम्मत ही नहीं होती कुछ भी करने की ना, वो करने ही नहीं देते, वो इतनी हिम्मत पैदा ही नहीं होने देते। और इनके लिए तो मैं क्या थी, वो तो बस वो मेरे को मतलब वो कभी किसी से नहीं डरे, वो बहुत हिम्मत वाले, बहुत मतलब उनका ना नाम है हमारे एरिया में ना, तहसील के तो वो शेर बोले जाते थे। वो इतने हिम्मत वाले, इतने दमदार इंसान थे वो। तो जब मैं उनकी सीट पे बैठी ना, मुझे उनके बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें बताते थे आके, ऐसी ऐसी बातें बताते थे, मतलब मैं खुद चौंक जाती थी कि मतलब वो ऐसे ऐसे काम करते थे, इतनी पावर थी उनके पास में, इतनी हिम्मत थी कि एक अकेला इंसान किसी का भी मुकाबला कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो वो सुन के इतना प्राउड फील होता था कि मेरे पापा हैं वो, मतलब मेरे पापा हैं, मेरे पापा ने इतना नाम किया है। एक वो तो ना वकील वो होता है जिसको हर इंसान जाने, तो ये उस लेवल के इंसान थे कि इनको कितना भी मुश्किल जो कोई नहीं कर सकता था ना, वो ये करते थे। नहीं, तो एक बच्चे के लिए बाप बहुत ज़रूरी होता है, हर उम्र में ज़रूरी होता है, मतलब कोई भी उम्र हो, एक सहारा बहुत ज़्यादा, एक साया होता है ना कि उस साए में उसके बच्चों को कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये वो है। अभी भी है, ये साथ में ही है, माँ बाप कभी कहीं नहीं जाते, मैंने फील करा है। बट अभी ये गायब है, थोड़े टाइम से ना ये गायब है। और ये जब करेंगे चीज़ें, ये जब आएंगे, जब उनको दिखेगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही है, तब ये कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे आगे। और मुझे बस वो इंतज़ार है कि कब ये मेरी बात सुने, कब इनको समझ में आए कि चीज़ें कैसे क्यों गलत चल रही है इतनी, तो ये आगे ठीक करेंगे। अभी मैं बहुत ज़्यादा ना इमोशनल हो रही हूँ इनको लगा कि मैं रो रही हूँ तो इसलिए आके खड़ी हो गई, बट मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। व्लॉग तो देखेंगी, बट ये है कि अभी क्यों दिखाना है, अभी रिएक्ट करेंगी। तो मैं इमोशनल हो रही हूँ, मैं बहुत देर से रो रही हूँ बैठ के ना, बार बार देखती हूँ, फिर रोती हूँ, फिर फ़ोन चलाती हूँ, फिर देखती हूँ, फिर रोना आ रहा है। तो मतलब मेरे से इनके बारे में बात नहीं होती। शायद कोई भी बच्चा होगा जिसके माँ बाप नहीं होंगे, उसी को ही पता उनकी क्या कदर है। फिर तो दुनिया माँ बाप बन जाती है, फिर दुनिया रूप दिखाती है, दुनिया दबाती है, एहसान दिखाती है, इतना सा करने का भी इतना एहसान दिखाती है जिनके माँ बाप नहीं होते उन बच्चों को। मैंने देखी है अपने आँखों के सामने चीज़ें होती हुई ना। मेरी तो माँ है संभालने के लिए, मेरा भाई है संभालने के लिए, बट मैंने देखा है बहुत लाचार हो जाते हैं लोग, मतलब माँ बाप बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए तो ये क्या है ना, मतलब मैं तो इनके बारे में बता ही नहीं सकती हूँ, मैं बोलना ही नहीं चाहती। मैं कभी सोचती ही नहीं हूँ कि ये है नहीं, मेरे को ना ये अभी भी ऐसे याद आते रहते हैं। जैसे घर आते थे, सबसे पहले आके मेरे को आवाज़ लगाते थे राशु। जब सबसे पहले घर में आके इनका सिर्फ एक वर्ड था राशु, इन्होंने कभी और कुछ नहीं बोला। ये रिकॉर्ड है, इनका रिकॉर्ड है। तो इधर से ऐसे जाना, हमेशा खाना पूछते थे मुझसे जब भी मैं इनका खाना लेके जाती थी ना।
मेरे को भी खिलाते थे, कुछ भी खाते थे। मतलब बहुत ऐसी ऐसी इतनी सारी चीज़ें हैं। मैं जब भी मेरे को स्कूल छोड़ने जाते थे, कॉलेज में छोड़ने जाते थे बस के लिए, बस के पास हमेशा मेरा हाथ पकड़ के छोड़ के आते थे। कभी इन्होंने, मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई, ठीक है, मैं कॉलेज में भी थी तो ये मेरा हाथ पकड़ के लेके जाते थे, हाथ पकड़ के लेके आते थे, कभी हाथ नहीं छोड़ते थे कभी भी। तो मम्मी भी बोलती थी बड़े हो रहे हैं बच्चे ना, तो कहते मेरे लिए तो बच्चे ही है ना, मेरी तो बच्ची है ना। तो लोगों को भी इतना अच्छा लगता था, सब नोटिस करते थे चीज़ें ना, कि मतलब एक इसलिए मेरे को लगता है कि मतलब बेटी के लिए बाप बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। एक वो होता है जो सारे नखरे उठाता है, सारी इच्छा जो होती है ना, वो सारी पूरी करने की सिर्फ हिम्मत एक बात में होती है कि वो इतनी सी तकलीफ़ नहीं आने देता। और अगर किसी ने कुछ बोल दिया ना मुझे, इतना सा भी अगर मेरे को कोई कुछ बोल देता था ना, तो ये उसकी ऐसी तैसी कर देते थे बिल्कुल। इतना मतलब इतना गुस्सा था इनके अंदर कि ये बिल्कुल सहन नहीं कर पाते थे चीज़ें ना, कि अगर मेरे घर वाले ही मेरे को कुछ नहीं बोल सकते थे, मम्मी भाई कुछ नहीं बोल सकते थे इनके सामने ना। और जाने के बाद अपने आप ही बड़ी हो गई मैं, कब मैं समझदार हो गई, कब मैं इतनी चीज़ें समझने लगी मुझे खुद ही नहीं पता। पर बहुत कमी है लाइफ में ना, बहुत कमी है, बहुत। मैं सोचती हूँ अभी ये होते तो चीज़ें शायद ऐसी होती ही नहीं, चीज़ें बहुत अच्छी होती। कोई हिम्मत नहीं करता कुछ भी गलत करने का ना, नहीं सोचता कोई भी। एक ब्लॉग बनाऊंगी प्रॉपर, बताऊंगी इनके बारे में, दिखाऊंगी। इनकी ना एक डायरी है, ये जो भी काम करते थे ना, ये न्यूज़पेपर में बहुत आते थे, बहुत न्यूज़पेपर में आते थे। तो पता है इनको शौक था अपनी फ़ोटोज़, जो न्यूज़पेपर में इनकी न्यूज़ आती थी साथ में फ़ोटो भी आता था, तो ये उसको काट के रखते थे हमेशा ना, डेली मतलब हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में इनके बारे में ज़रूर आता था लिखा हुआ ना। ये ऐसा नहीं होता होगा किसी के साथ भी ना, बट इनके साथ था। इन्होंने बहुत नाम कमाया है, ये बहुत खड़े होते थे लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जिसके साथ गलत हो रहा है उसके लिए इतनी आवाज़ उठाते थे, इतनी आवाज़ उठाते थे मतलब। और इनकी बात मानी भी जाती थी क्योंकि लोगों को पता था कि ये इंसान वो है जहाँ सही होगा ये वहाँ खड़ा मिलेगा। तो मैं वो फ़ोटोज़ वगैरह, वो डायरी निकालूंगी इनके ना, कटिंग करी हुई न्यूज़ है, मैं पढ़वाऊँगी आपको ना, अगर अब तक वो सही रखे होंगे। इनको बहुत शौक था। ये सबसे पहले हमारे रोज़ न्यूज़पेपर आता था, डेली ये सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो उसको कट करके रखते थे। मुझे याद है मैं बचपन से देख रही थी, मैं बड़ी हो गई तब तक मैंने सेम चीज़ देखी है। तो आप में खुद में कितना प्राउड होगा कि आपके मतलब आप किस घर से बिलोंग करते हो, कि मतलब जहाँ इतना अच्छा सम्मानित इंसान रहता है, इतना पावरफुल इंसान रहता है जिसने इतनी इज़्ज़त कमाई है। तो इसलिए हमें बहुत पता है इज़्ज़त का ना, इज़्ज़त क्या होती है, कैसे कमाई जाती है, वो इज़्ज़त होती है। ये कुछ भी करने से ये इज़्ज़त नहीं होती। इज़्ज़त कमाने में है ना पूरी उम्र बीत जाती है, उनकी पूरी उम्र निकल गई और अब ये है नहीं, तो वो इज़्ज़त हम देख रहे हैं। मतलब अभी भी हम कहीं चले जाते हैं ना, तो हमें इनके नाम से बोला जाता है कि इनके बच्चे हैं, और वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, वो बहुत, उन्होंने बहुत करा है लोगों का, बहुत लड़े हैं वो लोगों के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। और आज कोई कुछ भी कर देता है ना, बिना सोचे समझे कि दूसरे की फैमिली की इज्जत के साथ कैसे खेल रहे हैं हम, बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है कि खुद की नहीं है इज्जत, या खुद कभी समझ में ही नहीं आई इज्जत क्या होती है, पर दूसरों की इज्जत
इंसान की उम्र निकल जाती है वो कमाने में ना, जो लोग 1 सेकंड में आके उतार देते हैं। लव यू। तो मैं बनाऊंगी पूरा प्रॉपर व्लॉग, अच्छे से बनाऊंगी। आज तो मैं इमोशनल हो रही थी तो मैंने छोटी सी क्लिप डाल दी कि ये मैं डाल दूंगी व्लॉग में। तो इस चीज़ को कोई नेगेटिव वे में मत लेना, एक पॉजिटिव वे कि एक बच्चा ना जो अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ मैं। अभी भी मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। मेरे साथ अभी भी कुछ भी हो जाता है तो मैं ये बोलती हूँ अपने पापा को बता दूँगी। तो वो बच्चे वाली हरकत ना मतलब है मेरे अंदर, अभी भी है मेरे अंदर ना, इनको लेके है, तो मैं इनको बता दूँगी। तो प्लीज़, इमोशंस होते हैं सबके, मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं जितनी स्ट्रॉन्ग हूँ ना, मैं उतनी इमोशनल भी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब जुड़ जाती हूँ चीज़ों से ना। ऐसा होना नहीं चाहिए इंसान को ना, इमोशनल नहीं होना चाहिए इंसान को, मैं तो यही मानती हूँ। तो ये व्लॉग यहीं तक, बस इतना ही। बनाते हैं फिर कल कुछ और बनाते हैं अच्छे से।